सॉन्ग मिला सबको? उसमें देखिए बंगाली पार्ट है, ऊपर में इंग्लिश जो प्रभुपाद जी लिखा है और उसका ट्रांसलेशन, उसका बांग्ला में ट्रांसलेशन किया है सॉन्ग का हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। से शुभ दिने आराधना करी জাগরে জগৎবাসী চৈত্র মধুর স্বর্গ মেদুর শুভ লগনের রাশি সে শুভ দিনে আরাধনা করি জাগরে জগৎবাসী চৈত্র মধুর স্বপ্ন মেদুর শুভ লগনের রাশি যেদিন আমার হৃদয়ের রাজ গুরুদেব মহারাজ উতপুরী ধামে প্রকাশে আপনি হরে পৃথিবীর ত্রাস যেদিন আমার হৃদয়ের রাজ গুরুদেব মহারাজ উতপুরী ধামে প্রকাশে আপনি हरे पृथ्वीर देवदूत सम गुरु महाराज आलोके प्लावित करो जीव उद्धारे जीवन युद्धे पराजित मोर भय सन्त्रास हरो देवदूत सम गुरु महाराज आलोके प्लावित करो जीवन युद्धे पराजित मोर भय सन्त्रास हरो दुर्लभतम मानव जीवन तथापि भरोसाहीन तब कृपा बिना मी असहाय अपार उदासीन दुर्लभतम मानव जीवन तथापि भरोसाहीन तब कृपा बिना मी असहाय अपार उदासीन मायार प्रभावे আপন স্বভাবে সদাই সদাই অধমমতি প্রাণ করো এই অধম জনে রে কৃপা বিনা নাই গতি মায়ার প্রভাবে আপন স্বভাবে সদাই অধমমতি প্রাণ করো এই অধম জনে রে জীব কল্যাণে তব অবদান জগতে ঘোষিত আজ প্রভু শ্রীচরণ আমার জীবন গুরুদেব মহারাজ জীব কল্যাণে তব অবদান জগতে ঘোষিত তব শ্রীচরণ আমার জীবন কৃষ্ণ
কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে ক্লেশ পায় অবিরত মরুভূমি মাঝে মৃগ তৃষা সম প্রলোভন ভরে হত কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে ক্লেশ পায় অবিরত মরুভূমি মাঝে মৃগ তৃষা সম প্রলোভন ভরে কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে ক্লেশ পায় অবিরত মরুভূমি মাঝে মৃগ তৃষা সম প্রলোভন ভরে হত কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে ক্লেশ পায় অবিরত মৃগ তৃষা সম প্রলোভন ভরে হত বিভীষিকা ভরা অন্ধ তিমির মানিষা সমমানি মম আশা গুরু মহারাজ প্রবসি মুখের বাণী বিভীষিকা ভরা অন্ধ তিমির অমানিষা সমমানি গুরু মহারাজ তব শ্রীমুখের বাণী ভক্তির বাণী পৃথিবীতে আনি জীবে দয়া হল সারা সব অবতার সার শিরোমণি গৌর প্রভুর ধারা বিপ্রবাণী পৃথিবীতে আনি সারা সব অবতার সার শিরোমণি গৌর প্রভুর ধারা যে বাণী সবার অজ্ঞাত ছিল তোমার আশিসে আজ জগৎ মাঝারে বর্ষিত হলো গুরুদেব মহারাজ যে বাণী সবার ছিল তোমার আশিসে জগৎ মাঝারে বর্ষিত হলো গুরুদেব মহারাজ পরম ব্রহ্ম পরম পুরুষ প্রমাণ করিলে তুমি নির্বিশেষের নির্বাণবাদ ত্যাজিল ভারত ভূমি পরম পুরুষ প্রমাণ করিলে তুমি নির্বিশেষের নির্বাণবাদ ত্যাজিল ভারত নবীন জীবন লাভি মোরা তাই উল্লাসে হয়ে মগ্ন তোমার চরণ বন্দনা করি মোহপাশ করি ভগ্ন নবীন জীবন লাভি মোরা তাই উল্লাস হই মগ্ন তোমার চরণ বন্দনা করি মোহপাশ করি তুমি যদি আজ প্রকাশ না হতে অন্ধ তিমির
কণ্ঠে দীপ্ত কণ্ঠে তবে কে শোনাত শ্রী ভগবানের বাণী। তুমি যদি আজ প্রকাশ না হতে অন্ধ তিমির হানি, দীপ্ত কণ্ঠে তবে কে শোনাত সেই অধিকার তোমার এই সাজে, দণ্ড তোমার হাতে। কৃপা করিয়ে অধম জনের নিয় চলো তব সাথে। সেই অধিকার তোমার এই সাজে, দণ্ড তোমার হাতে। কৃপা করিয়ে অধম জনের নিয়ে চলো তব সাথে। তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ, তুলনা তাহার নাই। তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ, তুলনা তো তার নাই। শিশিরের মতো উজ্জ্বল আর উচ্ছল তার ঠাই। তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ, তুলনা তাহার নাই। শিশিরের মতো উজ্জ্বল তার উচ্ছল তার ঠাই। চির পুরাতন শাশ্বত বাণী, নবীন সাজেতে রাজে। তোমার কৃপার প্রকাশ স্বরূপে সারা জগতের মাঝে। চির পুরাতন শাশ্বত বাণী, নবীন সাজেতে রাজে। তোমার কৃপার প্রকাশ স্বরূপে সারা জগতের মাঝে। জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। জয় প্রভুপাদ, 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 জয় প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे पंग करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं गणतारिणं हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है सुबह का मॉर्निंग क्लास में। तो ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग श्रील प्रभुपाद खुद लिखे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 62 अपीयरेंस डे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो आज हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। तो ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है इसका मीनिंग आप लोग जरूर पढ़िएगा। जो लोग बंगाली जानते हैं तो आपको बहुत तक समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप इसका मीनिंग पढ़िए और बहुत हार्ट टचिंग है और तब आपको थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा थोड़ा समझ में आएगा। तो इसमें एक एक लाइन एक एक स्टैंजा का मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो इधर भक्ति श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देवदूत समो गुरु महाराज आलोके पराभित करो जीवन युद्धे पराजित मोर भय संत्रास भरो। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति भयभीत रहता है, अलग अलग प्रकार के भय, जॉब नहीं मिलेगा भय, या परिवार के लोग मर जाएंगे उसका भय, तबीयत खराब हो जाएगा उसका भय, मृत्यु का भय, तो आहार निद्रा भय मैथुन। तो खाना नहीं मिलेगा उसका भय, कॉलेज बंद है उसका भय, सब लोग भयभीत है। अगर कॉलेज नहीं खुलेगा, प्रोटेस्ट चल रहा है बाहर, अलग अलग लेवल में प्रोटेस्ट चलेगा, खोलिए, हम लोग जाके पढ़ना चाहते हैं। दे आर फियरफुल व्हाट विल हैपन टू देयर करियर।
कुछ लोग होते हैं एकदम अज्ञान के तमोगुण में रहते हैं, उसका किसी जैसे पागल लोगों का किसी भी चीज में भय नहीं होता है, उसको भी भय नहीं होता है। समझ में आ रहा है कुछ? तो उससे बाहर निकलो। तो तो इस भौतिक जगत में सभी लोग भयभीत है, और क्यों? क्योंकि लोग अज्ञान के अंधकार में हैं। ये जितने भी भय हैं, दुख है, ये बॉडी के प्लेटफॉर्म में है, शरीर के प्लेटफॉर्म में है। तो जब तक हम लोग शरीर के स्तर पे रहेंगे, शरीर के स्तर पे सब कुछ अनित्य है। सब कुछ टेम्पुररी है और सब कुछ होने वाला है। इसलिए जब तक हम लोग शरीर के प्लेटफॉर्म में जीवन जिएंगे, शरीर के जरूरत ही हमारे जीवन का लक्ष्य रहेगा, हमेशा भयभीत रहेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज उनके पिताजी को कहते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्। तो पहला लाइन है, असुर वर्ज देहिना, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्। जो असत वस्तु का आश्रय लिया है, शरीर असत है, और शरीर के साथ जो भी चीज जुड़े हुए वो भी वस्तु असत है। असत मतलब टेम्पुररी, असत मतलब इग्नोरेंस। तो तो जो व्यक्ति असत वस्तु का आश्रय लिया है, तो हमेशा सदा समुद्विग्न, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं, और वो बार बार पराजित होते हैं। बार बार एक प्रॉब्लम सॉल्व करते तो दूसरा प्रॉब्लम तैयार होता है, क्योंकि सॉल्यूशन इज इन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। लोग बॉडीली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो असत वस्तु के आधार पे है, और उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन ला रहा है? एक असत सॉल्यूशन ला रहा है। जैसे बाल पक गया तो क्या कर रहे हैं? हेयर डाई कर रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है अगर आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए आप प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में सब लोग जीवन युद्धे पराजितो मोर भय संत्रासो करो। तो जीवन युद्ध में, रुमाल नहीं है, रुमाल रुमाल लेके आओ या गमछा लेके आओ। तो बार बार पराजित होते हैं, और देवदूत सम गुरु महाराज आलोके प्लावित करो। और आप जो भक्ति, आप गुरुदेव, आप क्या करते हैं? आप देवदूत के समान हैं। तो आप क्या करते हैं? ये पूरे अज्ञान में डूबे हुए जीवन के युद्ध में पराजित लोगों को क्या कर रहे हैं? ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उनको प्लावित कर रहे हैं। इस ज्ञान विज्ञान इसका वितरण करने के द्वारा सबको इस अज्ञान रूपी माया से आप उनको उद्धार कर रहे हैं। जैसे अगर ये रूम बंद हुआ रहता है तो पूरा अंधेरा रहता है, और जब भी दरवाजा खोल दिया पूरा चारों ओर प्रकाश फैल गया, सारे अंधकार, सारे दुख खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत शास्त्र को देवदूत के जैसा है, भगवान के दूत है। तो तो वो इस भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये शिक्षा वो वितरण करने के द्वारा ये भौतिक जगत में पराजित लोगों को भय संतरास को हर रहे हैं। तो हम लोग भय संतरास से कभी मुक्त नहीं हो सकते अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति नहीं करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे जीवन नहीं जीते हैं। हमेशा आप भयभीत रहेंगे। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको लग रहा नहीं अभी जॉब प्रॉब्लम है, जॉब मिल जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम शुरू होगा, जॉब लूज करने का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा।
So every time you will be fearful only. We cannot become fearless, we cannot become happy unless we become steady in Krishna consciousness, no matter whatever material background you may be. फिर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, दुर्लभतम मानव जीवन तथापि भरोसाहीन, तब कृपा बिना আমি असहाय अपर उदासीन। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दुर्लभतम मानव जीवन, मनुष्य जीवन दुर्लभ है और हम लोग अज्ञान के अंधकार में डूब के हमारे दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन फिर भी ये तथापि भरोसा है, फिर भी टेम्पोररी है। शास्त्र में कहा जा रहा है कि दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थोदम। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं उनके उनके डिमोनियक फ्रेंड्स को कह रहे हैं। सिर्फ अगर आप लोगों को भी जाके बोलना चाहिए, कॉलेज में हल्ला कर रहे थे करके चिल्ला रहे थे सैटरडे को टेक फेस्ट में तो उनको जाके आप लोगों को प्रहलाद के जैसा एटलीस्ट कुछ प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट उनके दल में भीड़ जाना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, उसके दल में भीड़ जाते हैं और दोबारा चूहा बन जाता है। तो वो नहीं करके हमें उनको बताना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन बाकी स्पीशीज के जैसा ही टेम्पोररी है, ये समझ। तो इसलिए मनुष्य जीवन के अगर अज्ञान के अंधकार में बिताएंगे तो क्या होगा, जीवन युद्धे पराजितम, और बार बार परास्त होंगे, बार बार मृत्यु, माया, कर्म, काल और हमारे जो मैटेरियल डिजायर्स है, हमारे जो अज्ञान है, हमारे जो पॉल्यूटेड माइंड एंड सेंसेस है, हमें बार बार चीटिंग करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप जो ज्ञान के प्रकाश फैला रहे हैं वही मेरा होप है। तो तबो कृपा बिना अमी असहाय अपार उदासीन, इसलिए आपकी कृपा के बिना मेरा कोई होप नहीं है। तो अभी ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज्ञान वितरण किए, तो केवल ज्ञान ही वितरण नहीं किए हैं, गीता भागवतम की शिक्षा के वितरण नहीं किए, उनके जीवन से, उनके आचरण से वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए उनको लायन गुरु कहते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो सबको होप दे सकता है, जो सबको आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तबो कृपा बिना अमी असहाय। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आपके कृपा के बिना, आपके आश्रय के बिना, आपके संग के बिना, आपके शिक्षा के बिना मैं असहाय हूँ, मेरा कोई इस उद्धार का आशा नहीं है। So this should be the attitude of a disciple. What is the attitude of a disciple when he is practicing Krishna consciousness? अगर डिसाइपल सोचता है नहीं मैं सब कुछ खुद जानता हूँ, खुद कर सकता हूँ, मेरे को कोई किसी का शेल्टर का जरूरत नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बहुत पंडित हूँ, मैं किसी भी जगह में जाके भक्ति कर लूंगा, तो वो सबसे बड़ा डेंजर में है। तो गुरु के कृपा से ही शिष्य का उद्धार हो सकता है, गुरु के कृपा से ही नॉलेज रियलाइज होगा। अगर हम सोचते कि खुद पढ़ के समझ जाऊंगा, मैं खुद अकेला भक्ति करूंगा, ये जो भौतिक जगत है ये एक डार्क
वेल के जैसा है या डार्क फॉरेस्ट के जैसा है बताया गया है। उसको क्रॉस करना, उससे बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसलिए ऐसे जैसे महान भक्तगण है जो भगवत धाम से आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो 3 गुण से मुक्त हैं, परमहंस हैं, वो हम जैसे पतित लोगों को उद्धार कर सकते, या इस भौतिक जगत रूपी गहरा जंगल से निकालने का, हमारे जो मन कर्म, और इस भौतिक जगत में कितने प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है भक्ति से डेविएट करने के लिए, हाँ, अज्ञान में डुबा के रखने के लिए, ऐसे भक्त लोग ही हमारा आश्रय है। उनके कृपा के बिना हम लोग इस बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एक डिसाइपल्स का, एक साधक भक्त का एटीट्यूड हमेशा उनके कृपा को भिक्षा मांगते रहना चाहिए। Always seeking their blessings, their mercy, their guidance, their shelter. That is a secure place. That is a secure state. हम लोग भगवान के पास प्रार्थना करते हैं जस्ट फॉर आवर मैटेरियल बेनिफिट, कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। But how much we are seeking the shelter for spiritual protection, for spiritual advancement. That is very very important. तो फिर प्रभुपा जी अगले श्लोक, अगले लाइन में बोल रहे हैं, मायार प्रभावे आपनो स्वभावे सदाई अधम मति ত্রাণ করো এই অধম জনে রে कृपा बिना नहीं गति। इतना मीनिंगफुल है। तो माया के प्रभाव से सभी जीवों का मति अधम, नीचे की तरफ जाता है। चेतना माया के प्रभाव से हमेशा, देखिए हम लोग भक्ति को आगे करने के लिए, जप को अच्छा करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए कितना फाइट करना पड़ता है कि नहीं? उसमें थोड़ा नेग्लेक्टफुल होते तो क्या होता है, हाँ, फिर से नीचे चला जाता है। करेक्ट, हाँ? हमारे बैड हैबिट्स, बाहर के दुनिया के इन्फ्लुएंसेस, हमारे वीकनेसेस, हमारा मैटेरियल डिजायर सब खींच लेता है। तो माया के प्रभाव से सभी लोग आपनो स्वभाव है, माया प्रभाव है और आपनो स्वभाव है, माया के प्रभाव से और अपने जो स्वभाव है, बैड हैबिट्स है, नेचर्स है, इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड्स है, उसके द्वारा मति हमेशा अधम, सदाई अधम मति, अधम नीचे की तरफ जाता है। इसलिए आप ही केवल त्राण कर सकते हैं, आपकी कृपा के बिना कोई गति नहीं है। आप ही, हाँ, आपके शिक्षा के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा इस अधम लोगों को आप त्राण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे महान भक्तों की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उनके शिक्षा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारने की प्रयास करना चाहिए, तभी आप हमारा अधम गति से हम लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन केवल इंद्रिय भोग में बिताना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन इज गिवन टू अप्लाई दिस वाणी, otherwise you are on the platform of animal have no intelligence, no knowledge. And this modern days all propaganda is happening to more enjoyment, more sense gratification, and mobile phone, different internet facilities, billboards, all advertisements, propaganda is happening just to make you a better animal and better slave, nothing else. तो इसलिए अगर हम लोग
हमारे शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, चिरो पुरातन शाश्वत वाणी, शाश्वत वाणी जो है उसको एप्लीकेशन करने के लिए, उसको हमारे जीवन में उतारने के लिए हमारे जीवन को सदुपयोग करना चाहिए। और यही सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, दिस वे ओनली यू कैन सेलिब्रेट योर लाइफ, टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, टू रीइंस्टेट। तो জীব কল্যাণে তব অবদান, জগতে ঘোষিত আজ, তব শ্রী চরণ আমার জীবন गुरुदेव महाराज। जीव कल्याणे तब अवदान, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरे पृथ्वी के अधपतित जीव का कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्गीकृत किया। तो उन्होंने संन्यास लिए और ये गुरु परंपरा के जो शिक्षा है, भागवत गीता के जो शिक्षा है, चैतन्य चैतामृत की जो शिक्षा है, भगवान के जो वाणी है, वो सबके पास वो वितरण किए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो कंट्रीब्यूशन है ये पूरे पृथ्वी के कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए, अधपतित जीव का उद्धार के लिए अनपैरेलल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो कंट्रीब्यूशन है, तो और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तबो श्री चरण आमार जीवन गुरुदेव महाराज। तो एक शिष्य के लिए गुरु के आश्रय उनके जीवन स्वरूप होना चाहिए। शिष्य के लिए, एक शिष्य को, एक साधक भक्तों को गुरु के शेल्टर, गुरु के आश्रय उनके जीवन स्वरूप लेना चाहिए, या उनके इंस्ट्रक्शन, उनके चरण कमल मतलब क्या, उनके इंस्ट्रक्शन, उनके शिक्षा जीवन लाइफ एंड सोल के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे हम लोग सुने हैं भक्ति का 9 स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ज्यादातर भक्त लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अनर्थ निवृत्ति स्टेज में अटक जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति स्टेज क्रॉस नहीं कर पाते। और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु चक्र बना रहता है। तो इस अनर्थ निवृत्ति स्टेज क्रॉस तभी कर पाएंगे जब गुरुदेव के शेल्टर, गुरुदेव के जो शेल्टर है आप सीरियसली लेंगे, वो भोग लगत से। जब गुरुदेव के आश्रय आप सीरियसली लेंगे, जब गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन जो है आपके जीवन और आत्मा के हिसाब से जब शिष्य लेता है, हमारे आत्मा और हृदय के हिसाब से हम लोग लेते हैं, गुरुदेव के संपूर्ण शरणागत रहते हैं, तो तब हमें इस गुरु की आज्ञा को पालन करने की, या जो भगवत गीता का जो इंस्ट्रक्शन है, भक्ति के अलग अलग अंग को पालन करने की शक्ति प्राप्त होता है। तो इसलिए गुरु मीन्स हैवी, तो उनसे इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए उनको गुरु कहा गया है, सबसे गुरुत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तो आध्यात्मिक ज्ञान एक तलवार के जैसा है,
और उस तलवार के द्वारा आपके जीवन के सारे समस्या को काट सकते हैं, अज्ञान को काट सकते हैं, लेकिन उस तलवार को उठाने की शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। और वो शक्ति प्रदान करते हैं गुरु। तो इसलिए केवल ज्ञान से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, जस्ट थियोरिटिकल नॉलेज। इसलिए भक्ति कोई चीटिंग करके या कोई इंडिपेंडेंटली कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। विदाउट मर्सी ऑफ गुरु, विदाउट मर्सी ऑफ वैष्णवास, without mercy of acharyas, we cannot advance, because we will not get sufficient strength to practice. You will try and fail, you will try and fail, you will try and fail. And therefore we have to try, but we have to depend on the mercy of guru, vaishnavas, acharyas. That is the way. By their mercy we will get strength. So on the other hand, if we please Guru, Krishna is pleased. If we please Guru, Krishna is pleased. And therefore, depending on Guru is not a staircase. गुरु के ऊपर डिपेंड करना ऐसे नहीं कि स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में चढ़ के हम ऊपर चले जाएंगे और जब ऊपर चले जाएंगे स्टेयरकेस को फेंक देंगे। मायावादी लोग ऐसे सोचते हैं, ये गुरु का शेल्टर लेके प्रोग्रेस कर जाएंगे और फिर तब तो गुरु का जरूरत नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं, यूज एंड थ्रो। ऐसे लोग गोरू होता है, गाधा होता है। तो गुरु का शेल्टर लेना ये बिगिनिंग है, गुरु का शेल्टर लेना, गुरु को संतुष्ट करना ये मिडिल है, और गुरु के ऊपर डिपेंड होना ये अल्टीमेट है। इसलिए कृष्ण कहते जो मेरा भक्त है वो भक्त नहीं। इसलिए कृष्ण कहते जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त की भक्त है वो मेरा असली भक्त है। तो इसलिए जब हम लोग गुरु और आचार्य को संतुष्ट करते, प्रसन्न करते हैं, उनके कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके आदेशों को पालन करने के लिए हम लोग सिंसियरली प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को उसी प्रकार डिजाइन करते हैं, सजाते हैं, तब गुरु और कृष्ण देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शायद आपको कैपेसिटी नहीं भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, सीइंग देयर एंडेवर, योर एंडेवर, they will bestow their mercy, and by their mercy your all advancement will take place. अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के जीवन देखेंगे, श्रील प्रभुपाद पूरे जीवन में यही प्रैक्टिस किया है और यही सूत्र है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य गणों में भी आप यही प्रिंसिपल देख सकते हैं। हालांकि इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं वर्तमान में वो सभी गुरु हैं, लेकिन इस्कॉन में लगता नहीं है कि वो लोग गुरु है, इस्कॉन में लगता है प्रभुपाद जी गुरु है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने ऐसा मूड सेट किया है। प्रभुपाद जी भी ऐसे मूड में थे कि इज ऑलवेज इन द मूड ऑफ ए डिसाइपल, और प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी हमेशा सर्वेंट के मूड में, शिष्य के मूड में है। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब पूछा जाता था उनके गुरुदेव के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि व्हाट कैन आई स्पीक अबाउट माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय स्पिरिचुअल मास्टर इज ए वैकुंठा मैन। श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में उनके गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा भरा हुआ था, और इसलिए गुरु की सेवा करने के लिए उनके जीवन संपूर्ण रूप से उत्सर्गीकृत किए। तो इसलिए
It is our relationship with Guru, that how much you execute spiritual practice and devotional service. If your relationship with Guru and uh, previous acharyas, your shiksha gurus, your spiritual guide is very weak, you are in one world and Guru is in his one world. कहाँ है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, ठीक है, ठीक है, सब ठीक चल रहा है, आ जाऊंगा, कोई चिंता नहीं। तो शिष्य शिष्य के दुनिया में है, गुरु गुरु के दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आ, कुछ लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं हम अकेला ही सब कुछ कर लेंगे, उससे थोड़ा सा बेटर है नहीं, थोड़ा आते लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, वो भी दोनों में एक ही कैटेगरी है जाते। तो हम सभी को ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही भगवान के साथ जीव का संबंध को जोड़ते हैं। तो कृष्ण डायरेक्ट डज नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द कंडीशन सोल। गुरु परंपरा के थ्रू, जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो गुरु के थ्रू हम लोग जाते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब आप लोगों ने सुना है, जब प्रचार कर रहे थे, तो तब उस समय बहुत सारे अपसंप्रदाय फैल गया था, और चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध शिक्षा है वो लुप्त प्राय हो गया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसको रिवाइव किया था। जितने भी अपसंप्रदाय, आउल बाउल, नेरा नेरी, कर्ता भजा, साई दरवेश, ऐसे बहुत सारे, और मायावाद, शून्यवाद, निर्विशेषवाद तो है ही। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसको रिवाइव किए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर वो एक असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट फील कर रहे थे कि आई नीड ए पर्सन हु कैन हेल्प मी। तब वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि भगवान आप ना आइए तो एटलीस्ट आपका एक रे को भेज दीजिए, आपके शरीर के जो थोड़ा सा ज्योति है उसको भेज दीजिए। आप नहीं आने से भी चलेगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका एक शरीर के किरण को भेज दीजिए थोड़ा सा। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ पूरी धाम में, इस सॉन्ग में लिखा है, तो पूरी धामे प्रकाश आपुनी हरे पृथ्वी त्रास, पूरी धाम में प्रकट हुए थे। और जब उसके बाद कुछ दिन के बाद रथ यात्रा था, और रथ जा रही थी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ, और बीच में भक्ति विनोद ठाकुर का घर आता है, उसमें अटक गया। हाथी लाया गया, पहलवान लाए गए, लेकिन फिर भी रथ मूव नहीं कर रहा है। 3 दिन खड़ा था उधर रथ। तब उस समय भक्ति विनोद ठाकुर के पत्नी भगवती देवी, उनके नया क्या बोलते, नया नया पैदा हुए बच्चे को लेके आए, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, और जगन्नाथ के सामने, रथ के सामने पांडवों को दिए, और जगन्नाथ के सामने जब जगन्नाथ के चरणों के सामने रखे, तो जगन्नाथ के गले से ऐसे विशाल माला बच्चे के ऊपर गिर गए। हरि बोल। और सब पंडा लोगों ने बोला हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उन्होंने तो पंडा लोगों ने कहा, जगन्नाथ के जो सेवक लोग, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुत्र जगन्नाथ के जरूर महान भक्त हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए राधा मदन मोहन के पास गए थे परमिशन लेने। तो कोई भी चीज हम लोग शुरू करते तो भगवान से परमिशन लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए।
तब राधा मदन मोहन का गले का माला खुल के गिर गया था। हाँ? किस पर नहीं गिर गया था, उन्होंने प्रार्थना किया था, गिर गया था, मतलब भगवान ने दे दिया। और फिर पुजारी आके वो माला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो 80 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत में लिखे थे, 80 नहीं 90 साल, और वो आज सबसे टॉप मोस्ट लिटरेचर है। तो उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सुना, तब वो घर में नहीं थे, जब आए सुने वो, तब उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरा प्रार्थना को स्वीकार किए, और उन्होंने उनके असिस्टेंट या उनके रे उनको भेजा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर कोई साधारण या असाधारण व्यक्ति भी नहीं है, वो भगवान के पार्षद है जो आए हैं, और एक भगवान के पार्षद भक्ति विनोद ठाकुर उनको सहायता करने के लिए, महाप्रभु के मिशन को आगे लेके जाने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी लिटरेरी वर्क है, शुरू से ही वो दृढ़ता के साथ भक्त थे। उनका जब 7 साल की उम्र था, उन्होंने पूरे भागवत गीता कंठस्थ कर लिए थे, इतने ब्रिलियंट थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बहुत पंडित थे, material education or spiritual education, both. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was not interested for material education because he want to assist the mission of his father. He want to assist the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu to spread this mission and deliver the people who are under darkness, अज्ञान। आज के कॉलेज एजुकेशन में उस आध्यात्मिक ज्ञानों का वितरण नहीं किया जाता है। तो और इसके कारण लोग 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास जनरेशन पैदा हो रहे हैं, लोग पशु के जैसा जीवन जी रहे हैं। तो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर खुद ट्रेन किया था। तो किताब भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी किताबें हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे थे लेकिन वो एडिट करते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे। तो इस प्रकार ग्रंथों का रचना, इस भक्ति ग्रंथों का रचना और उसका वितरण की प्रेरणा जो श्रील प्रभुपाद जी को मिला था, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर से मिला था। तो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक्चुअली एक्सटर्नली इलिटरेट थे, लेकिन स्पिरिचुअली परमहंस वैष्णव थे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर एकदम हाईली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड जो है एजुकेटेड स्कॉलर को बोल रहे हैं कि नहीं एक इलिटरेट से दीक्षा लेने के लिए। तो और भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि हम अनक्वालिफाइड है, इतने पंडित लोगों को कैसे दीक्षा देंगे, मेरा कोई योग्यता नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं जानता हूं कि कृष्णा चतुर शिरोमणि है, और 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 उनके भक्तों भी बहुत चतुरी होंगे। तो अगर आप हमें दीक्षा नहीं देंगे तो मैं गंगा में कूद के मेरा प्राण विसर्जन करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बार अप्रोच किए। तो ये शिष्य का एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए इतना क्वालिफाइड इतना एजुकेटेड है लेकिन बहुत विनयी है।
तो अगर हम लोग विनयी नहीं होंगे, ह्यूमिलिटी का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। गुरु के कृपा, गुरु के पास, अ, वैष्णवों के पास हमें विनयी होना चाहिए। तभी हम लोग, हमारे जो मिथ्या अहंकार है उससे हम लोग मुक्त हो पाएंगे। तो तो भक्ति विनोद ठाकुर, अ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को वैसे ही अ, अ, परीक्षा लेना चाहते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस परीक्षा में पास हो गए। तो अ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर वो वन बहुत सारी चीजें मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, टाइम भी नहीं है, तो टाइम ओवर हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो अ, बहुत दृढ़ता के साथ भगवान के नाम का जप करते थे। तो अ, एक समय ऐसा हुआ था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास लेने के बाद, वो अ, ये आगे हो सकता है तो देखना पड़ेगा, 192 राउंड्स जप करते थे। तो मायापुर धाम में रुद्रदीप बोल के एक जगह है, हम लोग परिक्रमा के साथ समय गए थे। रुद्रदीप में महाप्रभु के विग्रह के सामने 192 राउंड्स, लगभग 10 साल उन्होंने जप किया। तो आ, तो और पूरे दिन में शायद एक बार भोजन करते थे, पूरे दिन में एक बार भोजन करते थे, और 192 राउंड्स जप करते थे। और इस प्रकार महाप्रभु के पास रो रो के वो प्रार्थना करते थे कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो तो तब उनको उनको एक चैतन्य चरितामृत का एक 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 पोर्शन मिला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में, चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं उसको लिखा गया था। तो उसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन था। लुप्त तीर्थों का उद्धार करना चाहिए, महा महाभगवान के जो लीला स्थलियों का उद्धार करना चाहिए, और ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, और भगवान के वाणी का प्रचार करना चाहिए, ऐसे लिखा गया था। तो वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत प्रेरणा मिला। तो और वो फिर कोलकाता में आए, उनके गुरुदेव का आज्ञा लेके वो कोलकाता में आए। ये जो तो शुरू में जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए थे, तो वो इसी स्थान पे जिधर कल हम लोग गए थे, कल को उद्घाटन हुआ, उसी स्थान पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 50 रुपया रेंट लेके वो जगह लिए थे। उस समय 19 कितना साल, 1914 ऐसा कुछ होगा, 1914 के आसपास। तो और उस स्थान का नाम दिया था उन्हें भक्ति विनोद आसन। तो भक्ति विनोद आसन का मतलब है कि जिस स्थान में बैठ के वो भक्ति विनोद ठाकुर के जो मिशन है उसको मेडिटेट करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर का जो जो इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार होगा पूरे विश्व में, अलग अलग प्रकार से उनके बहुत सारे आदेश था, तो उसको पूरी करेंगे वो। तो जब हम लोग बैठे रहते हैं तो हम लोग क्या मेडिटेट करते हैं, क्या सोचते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या बनाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे भक्ति विनोद ठाकुर के जो मिशन है, या चैतन्य महाप्रभु के मिशन है, उसको उसको पूरी करने के लिए, और वही उनके जीवन के मूल लक्ष्य था। तो
तो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये जो वॉइस है या बेस बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आइडिया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय ये ये छात्रावास, मतलब इधर छात्र लोग रहते थे, तो उसका शुरू किए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अ, चाहते थे जो यंग एजुकेटेड लोग हैं, इनको इस भगवत गीता का वाणी, चैतन्य महाप्रभु का वाणी, इनको पता होना चाहिए। और फिर वो महाप्रभु के वाणी वो पालन करके अपने जीवन में पालन करके उसको वितरण कर पाएंगे। तो विशेष करके युवा पीढ़ी और शिक्षित लोग अगर ये कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके जीवन अज्ञान और इंद्रिय भोग में बिता देंगे। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाह रहे थे कि यंग एजुकेटेड लोगों को इस ज्ञान का वितरण हो। प्रभुपाद जी के एक सॉन्ग में लिखते हैं, लंदन थे छात्रावास कोरी बारे चाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि पूरे पृथ्वी के बड़े बड़े शहरों में, इधर बड़े बड़े आईआईटीज एनआईटीज ये वो खुला हुआ है, तो उधर लोगों को इस आध्यात्मिक शिक्षा जो टॉप मोस्ट राज विद्या इसको प्राप्त हो। लोग इंद्रियों की सेवक बनने के लिए अपने शिक्षा को प्राप्त ना करें, भगवान की सेवा करने के लिए उनको इस दिव्य ज्ञान का प्राप्त करें। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का इच्छा था कि अगर 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 इस आध्यात्मिक ज्ञान को किसी को प्राप्त होगा, तो कुछ लोग अपने जीवन को उत्सर्ग करेंगे भगवान के वाणी को, वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर के वाणी को, महाप्रभु के मिशन को वास्तव में रूपदान करने के लिए कुछ लोग अपने जीवन को उत्सर्गीकृत करेंगे। और इसलिए उन्होंने ये छात्रावास छात्रावास खोले थे कि जिधर लोग ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। तो उनकी इच्छा था कि एटलीस्ट कुछ लोग तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तो उन्होंने छात्रावास खोला था। तो और और भगवान के वाणी को फुलफिल करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करेंगे। तो आ, लेकिन दुर्भाग्य से केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अकेले ही ब्रह्मचारी बचे थे। तो बहुत सारे छात्र लोग आए थे, लेकिन सभी लोग गृहस्थ आश्रम में चले गए। केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रहे भगवान की वाणी को रूपदान करने के लिए। और आगे जाके हम लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इच्छा को फुलफिल करने के लिए श्रील प्रभुपाद आए, और श्रील प्रभुपाद की इच्छा से बहुत सारे लोग ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं और इस महाप्रभु के आंदोलन में एक वंडरफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और महाप्रभु के वाणी को वास्तव में पूरे विश्व में रूपदान करने के लिए, पूरे विश्व के जो माया ग्रस्त जीव और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले लोगों को उद्धार करने के लिए जीवन उत्सर्ग कर रहे हैं और ऐसे महान आचार्य को सहायता कर रहे हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आइडिया था, उनके विजन था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ इम्पोर्टेंट सॉरी ये जो भक्ति विनोद आसन है, इधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लगभग 10 साल थे। उसके बाद बाग बाजार गौरी मठ, जिधर हम लोग गए थे, बाग बाजार गौरी मठ का स्थापना हुआ था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जितने भी महान शिष्यगण हैं, सभी लोग उधर ही आके भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले थे, सभी लोग उधर ही ज्वाइन किए थे। तो इसलिए ये जगह मतलब जो गौरी मठ के भक्तों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद के साथ भी उनका साक्षात्कार उसी स्थान में हुआ था, हम लोग सुने हैं बहुत बार। 1992 में 1922 में पहली बार साक्षात्कार उधर ही हुआ था, भक्ति विनोद आसन में, तो जिधर हम लोग गए थे कुछ दिन पहले। तो अभी तो एकदम पूरा फुल फ्लेजेड आ गया, बहुत सुंदर। तो
तो उसके बारे में आप लोग सुने हैं, पहले मैं नहीं बोलूंगा। तो उसी स्थान में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को आदेश दिए थे कि आप जैसे युवा व्यक्ति का कर्तव्य है, हाँ, कृष्ण भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का वितरण करे, विशेष करके इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए पाश्चात्य देश में। तो तो शिल प्रभुपाद बोल रहे थे कि शिल प्रभुपाद के साथ आर्गुमेंट हुआ था, तो शिल प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कन्विंस कर दिए उनके हायर नॉलेज, हायर विजन के द्वारा। और शिल प्रभुपाद जी, हाँ, शिल प्रभुपाद जी बोलते कि दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अ राइट, इज ए लॉर्ड चैतन्य's मूवमेंट इज इन द राइट हैंड। और बोले कि मैं गांधी का फॉलोअर था, लेकिन आज से मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बन गया। तो हृदय से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हार गए थे, लेकिन हृदय से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने गुरु के हिसाब से स्वीकार कर लिए और उनके आदेश को अपने लाइफ एंड सोल के हिसाब से अपने जीवन में ग्रहण किए। तो और इस प्रकार ये जो इस्कॉन का शुरुआत हुआ है, इस्कॉन का वितरण, इस्कॉन का डेवलपमेंट हुआ था, इस्कॉन का प्रचार, इस्कॉन जो आया है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में इस्कॉन रूपी आंदोलन का, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का बीज बपन किए थे, जो आज पूरे एक विशाल वृक्ष के जैसा पूरे विश्व में फैल गया है। तो अगर कोई गुरु के आदेश को बहुत सिंसियरली अपने जीवन में लेते हैं, हमारे जीवन में वही हम लोग निर्देश पाते हैं, 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करो, और भगवान की सेवा करो। कोई जो भी आप जो भी आपके लिए फेवरेबल आश्रम है, उस आश्रम में रह के अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के लिए उसको सदुपयोग करो। तो हमें वो सारे चीज जो है हमें हमारे जीवन में सीरियसली लेना चाहिए। हमारे जो भी टैलेंट है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 3-4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसमें से 3 इंस्ट्रक्शन है कि ग्रंथों का वितरण करो, भक्ति ग्रंथों का, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसका वितरण करो, ज्यादा से ज्यादा वितरण करो। दूसरा है नवद्वीप धाम या गौर मंडल भूमि का डेवलपमेंट करो। तो गौर मंडल भूमि मतलब जिधर जिधर महाप्रभु गए हैं, महाप्रभु का पास टाइम जिधर जिधर हुआ है, उस स्थान का डेवलपमेंट करो कि आगे जाके आगे वाले पीढ़ी महाप्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन कर सके। उस स्थान को सुरक्षित रखो। तो इसलिए शिष्य माँ जय पताका स्वामी गुरु महाराज है, नवद्वीप धाम का डेवलपमेंट, नवद्वीप धाम में जिधर जिधर लीला स्थली है, अलग अलग जो द्वीप हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि ये नवद्वीप मंडल का परिक्रमा होना चाहिए। अगर कोई नवद्वीप मंडल का परिक्रमा होगा, करेंगे, तो उनको महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु के प्रेम प्राप्त होगा, महाप्रभु की शिक्षा उनको समझ में आएगा। और नवद्वीप धाम जो है, नवद्वीप धाम, तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आगे जाके ऐसा दिन आएगा कि पूरे विश्व से लोग आएंगे और इस नवद्वीप मंडल का परिक्रमा करेंगे एक साथ 10,000 लोग आके पूरे विश्व से आके परिक्रमा करेंगे और सब लोग एक दूसरे को आलिंगन करेंगे। जर्मन, रशियन, अफ्रीकन, इंडियन, म्लेच्छ, शूद्र, ब्राह्मण, सब लोग एक साथ एक दूसरे को आलिंगन करके जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन बोल के वो लोग कीर्तन करेंगे। और अभी हम लोग देख रहे हैं लास्ट 5-7 साल से नवद्वीप मंडल का परिक्रमा हो रहा है, 10,000 लोग परिक्रमा कर रहे हैं एक साथ। तो इस्कॉन के गुरु लोगों ने टारगेट लिया था कि 10,000 लोगों को परिक्रमा कराएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो
डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इस प्रकार जब नवद्वीप मंडल का परिक्रमा होगा, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैल जाएगा। नवद्वीप मंडल में जब परिक्रमा होगा तो कृष्ण भक्ति का फ्लड होगा। नवद्वीप मंडल का डेवलपमेंट होगा, उसका इफेक्ट पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो सुनामी होता है, एक जगह से शुरू होता है, एक जगह से उसका क्या बोलते हैं, वेव्स शुरू होता है और फिर पूरे समुद्र में फैलता है। उसी प्रकार नवद्वीप धाम में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, महाप्रभु के जन्म स्थान है, संकीर्तन के पिता है, और इस स्थान का डेवलपमेंट होगा, इस स्थान का नवद्वीप धाम का प्रचार होगा, क्योंकि महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के पिता है। और इधर आके लोग शक्ति प्राप्त करके अपनी जगह में जाएंगे और उस जगह में फ्लड लाएंगे। हरि बोल। जैसे महाप्रभु के लीला में हम लोग सुने थे, महाप्रभु को दर्शन करके कोई अपने गांव दर्शन करके उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था, फिर अपने गांव में जब जाते थे वो आदमी, उस गांव में लोग फ्लड हो जाता था उसको देख के, महाप्रभु को नहीं। और फिर उस गांव के लोग जब दूसरे गांव में जाते थे, उस गांव में फ्लड हो जाता था। ऐसे महाप्रभु के प्रेम की शक्ति है, चैतन्य चैतन्य वर्णन है। तो उसी प्रकार जब नवद्वीप धाम में लोग आएंगे, नवद्वीप मंडल भूमि में जब लोग आएंगे, तब उनको कृष्ण भक्ति का प्राप्त होगा। और फिर जब वो अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने देश में जाएंगे, उधर कृष्ण भक्ति का फ्लड आएगा। और ये जो कोलकाता है, ये एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये जो कोलकाता है, ये इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के जो कैप्टन है, उनका जन्म स्थान है। श्रील प्रभुपाद की। और एक कोलकाता जो है, ये नवद्वीप धाम का गेटवे है। आपको अगर मायापुर जाना है तो कोलकाता होके जाना पड़ेगा। तो महाप्रभु कोलकाता होके भी गए हैं। तो इसलिए ये गौर मंडल भूमि में आता है, गौर मंडल भूमि का गेटवे है। तो इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी स्थान में इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का फ्लड का इंस्ट्रक्शन इसी स्थान में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को दिए थे। तो इसलिए इस स्थान का डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का विकास नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो I am a Calcutta boy, I am a Calcutta boy. What Calcutta thinks today, the whole India thinks tomorrow. And what India thinks today, the whole world thinks tomorrow. तो इसलिए अगर हम लोग कृष्ण भक्ति सीरियसली नहीं करेंगे और प्रचार नहीं करेंगे, तो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं होगा। अगर आप ही लोग तमोगुण में रह जाएंगे, तो फिर कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज ग्रेट सर्विस, एक्चुअली ग्रेट this is a great privilege. This is a great privilege to practice Krishna consciousness in this holy place of Kolkata, where Srila Prabhupada received this transcendental instruction from his spiritual master, which is the birthplace of Srila Prabhupada, who is a captain of the Sankirtan movement. It's a great privilege. हमें ऐसे सौभाग्य को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अवहेला नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत लोग 3 साल 4 साल के लिए शायद कोलकाता में आए हैं किसी भी कारण पढ़ाई करने के लिए, भाग्य से आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिल गया है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। अभी उस बीज में अगर जल सिंचन नहीं करेंगे तो दूसरे जगह में पानी चला जाएगा। तो इसलिए इस सौभाग्य को सदुपयोग करिए, ये बहुत ही सौभाग्यशाली है हम लोग। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं,
तो और तीसरा इंस्ट्रक्शन था नाम हट्ट और भक्ति वृक्ष का प्रचार करे। नाम हट्ट और भक्ति वृक्ष जो गृहस्थों को प्रचार होता है, जो नित्यानंद को शुरू किए थे, उसका डेवलपमेंट करे, उसका विस्तार करे। आज हम लोग देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से किस प्रकार पूरे विश्व में इस नाम हट्ट भक्ति वृक्ष का प्रचार हो रहा है। हजार हजार लोग, लाखों लाखों लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इंस्ट्रक्शन दिए थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दिए थे, श्रील प्रभुपाद उनके डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे। और इसके द्वारा किस प्रकार गुरु परंपरा से इस कृष्ण भावना का विकास विस्तार हो रहा है पूरे विश्व में। अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ भला हुआ है इस्कॉन के संस्पर्श में आके, श्रील प्रभुपाद जी के संस्पर्श में आके, कि मैं पशु के जैसा जीवन जी रहा था और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें एक दिव्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमें भी उस मिशन में हमारे गुरुजनों को हमें उनको असिस्ट करना चाहिए। और वही हमारे जीवन के संपद है, वही हमारे जीवन की वेल्थ है, वही हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जस्ट मैं रीड आउट कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के शिक्षा के बाहर जो भी है वो सब कोलाहल है। कोलाहल मतलब बाहर में कोलाहल होता है ना, झगड़ा होता है। रूप सनातन के शिक्षा के बाहर जितने प्रकार के तथाकथित प्रचार, कथा, मोबाइल, यूट्यूब इधर उधर होता है, ये सब कोलाहल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया वैष्णव कौन है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि कौनो को कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी छारी आछे जारे সেই तो वैष्णव। कौनक मतलब वेल्थ, कामिनी मतलब वोमेन, और प्रतिष्ठा मतलब एडोरेशन, डिस्टिंक्शन। तो जो व्यक्ति इस तीन चीजों का इच्छा अपने हृदय से छोड़ा है और कृष्ण भक्ति अहेतु की भाव से कर रहा है, वही वैष्णव है। तो कौनो को कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छारी आछे जारे সেই तो वैष्णव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक इंस्ट्रक्शन है, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। जिनका प्राण है, जीवन है, उनको प्रचार करना चाहिए। अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है मतलब डेड। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। अगर प्रचार नहीं करेंगे, आचार के साथ साथ प्रचार नहीं करेंगे तो डेड हो जाएंगे आप, माया पकड़ लेगा, दूसरी चीजों में एंगेज कर देंगे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले थे कि when you are in the association of devotee, do not fight with others, cooperate। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करिए, एक दूसरे के साथ सहायता करिए भगवान के इच्छा को पूरी करने के लिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान भक्त भगवान के धाम से आए हैं, जो राधा कृष्ण की मंजरी है, भगवान के रे है, भक्ति विनोद ठाकुर पुत्र हैं, ऐसे महान भक्त लायन गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद उनके पूरे जीवन उनको संतुष्ट करने के लिए बिता दिए, उनके इच्छा को पूर्ति करने के लिए। और आज हम लोग देखते हैं कि कैसे पूरे विश्व में एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सफल रूप से प्रचार प्रसार हो रहा है। हजार हजार करोड़ों करोड़ों लोग अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग भी अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेते हैं और ऐसे महान भक्तों को संतुष्ट करने के लिए हमारे जीवन के कुछ कीमती समय या
जो भी पॉसिबल है उसको उसको एंगेज करते हैं तो हमारे जीवन सफल हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम